And we're getting some breaking news. Sadhvi Pragya hails Malegaon blast verdict. Sadhvi Pragya roars Satyamev Jayate. She says Dharma, truth always triumphs. Launches a blistering attack on the betrayer. Sadhvi Pragya says that those who hate the nation got their answers. So Sadhvi Pragya has hailed the Malegaon blast case verdict. She has roared Satyamev Jayate. She goes on to say that dharma and truth always triumphs. She also launched blistering attack on the betrayer, saying that those who hate nation got the answers. In fact, another big claim that she has made is that she was tortured to name Prime Minister Modi and also some big leaders of the BJP during the investigation. सत्य की जीत हुई है जो सुनिश्चित थी, क्योंकि धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, इसलिए यह जीत होनी ही थी। सत्यमेव जयते, ये मैं पहले भी बोली थी और वह सिद्ध हुआ। विधर्मियों के, देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं, उनको जवाब मिला है और देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है और ये रहेगा। So Sadhvi Pragya, who was accused and now acquitted in the 2008 Malegaon blast case, has hailed the verdict. She has said that dharma and truth always triumphs. She roared Satyamev Jayate also. In fact, she also launched a blistering attack on the opposition, saying that those who hate the nation got their answers through this verdict. Now, it is also pertinent to note that she has also made a sinister claim, alleging that she was forced and tortured to take the names of top BJP leaders during the early investigation into the case, which also includes Prime Minister Modi's name. She has made this claim that she was being tortured by the ATS to name Prime Minister Modi, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, RSS Chief Mohan Bhagwat, and also other top BJP leaders. And she was told that the torture would stop if she complied and named these leaders. This is during the investigation that she has claimed that she was being tortured, but now she has been acquitted in the 2008 Malegaon blast case and she has hailed the verdict. She has wrote Satyamev Jayate. She has claimed that dharma and truth always triumphs, and yet again she has launched a blistering attack on the opposition, saying that those who hate the nation got their answers through this verdict. My colleague Ravish Pal is now joining us with more details on this. Ravish, एक बहुत बड़ा क्लेम जो सामने आ रहा है साध्वी प्रज्ञा की तरफ से। साध्वी प्रज्ञा ने बोला है कि उनको टॉर्चर किया जाता था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और कई बड़े बीजेपी के नेताओं के नाम ले सकें इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल, और अभी भी उन्होंने ये बात कही है। अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उनसे बात की यहाँ भोपाल लैंड होने के बाद, तो उन्होंने एक बार फिर से अपने उन्हीं एलिगेशंस को दोहराया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरी जांच के दौरान उनको इतना टॉर्चर किया जाता था ताकि वो थक हार करके नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, इनके वो नाम ले सके। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी, इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी वो दबाव में नहीं आई और उन्होंने झूठे तरीके से किसी का नाम नहीं लिया और इसीलिए उनको महिला होने के बावजूद पुरुष पुलिस के जो अधिकारी हैं, एटीएस के जो लोग थे, उनकी तरफ से उन्हें प्रताड़ित किया गया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये सब कुछ जो हुआ था ये उस वक्त सरकार के इशारे पे हुआ था। ये तमाम चीज़ें उन्होंने आज कही है, लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने आज पहली बार की है वो ये कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए ये कहा है कि आगे चल के वो इसके खिलाफ कार्रवाई करने वाली हैं। जो उन्होंने कहा है इन 17 सालों में, तो ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ, जो अधिकारी कर्मचारी होंगे, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो आगे कानूनी पहलुओं पर जो लीगल फॉर्मेट होगा उस पर बात करेंगी लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, और फिर वो जल्द ही एक कार्रवाई जो है वो करने के मन बना चुकी है उन लोगों के खिलाफ जो 17 सालों तक कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बड़ा दाग बन के रहा मालेगांव ब्लास्ट का जो पूरा मामला था। और आज जब वो घर पहुंची हैं तो बड़ी संख्या में उनके जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पहुंचे थे। उन्हें वेलकम करने के लिए जमकर आतिशबाजी हुई है, उनकी आरती उतारी गई है। फिलहाल वो घर में जा चुकी हैं, लेकिन घर में घुसने से पहले उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं पत्रकारों के भोपाल में, और कई बड़े खुलासे उन्होंने आज ये कहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा है कि उनके ऊपर प्रधानमंत्री, जो अब प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ हो या संघ के जुड़े हुए तमाम दूसरे बड़े नाम हो, उनका नाम लेने का दबाव जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर था।
जी रवीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो बिग अपडेट दैट इज कमिंग इन दैट while speaking to India today, Sadhvi Pragya has claimed that she will be taking action against the officials who were allegedly involved in the torture that she faced while the investigation was still on and the questioning was on in the Malegaon blast case.